हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर मोशन एंड टाइम का पार्ट फर्स्ट। इन दिस पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट मोशन एंड इट्स टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। First is term motion. What is the same motion? It is defined as the change the position of an object or body from one position to other position with respect to time. That means change the position of any object from one position to another position with respect to time. This is defined as motion. देखिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम टाइम के साथ में उसकी अगर पोजीशन चेंज करते हैं, सपोज हमारे पास चेयर है, चेयर को अपनी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी से द चेयर डू द मोशन. For example, here a car moves on a straight road and change their position from initial point A to final point B after some time. Hence, we say the car do the motion. देखिए कार पहले पोजीशन ए पे थी और थोड़े टाइम बाद में चलने के बाद में बी पोजीशन पे पहुंच जाती है. देन वी से कार चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब इतनी सारी मूवमेंट होने में कुछ टाइम भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है. सो दैट्स वी से it can do the motion. And the second definition, that is a definition of relative motion. It is also defined as a change of the position of an object or body with respect to an stationary object. कब कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जैसे देखिए कोई ट्री है, ट्री के रिस्पेक्ट में जो व्हीकल्स है अपनी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज करते जाते हैं रोड के ऊपर, ठीक है. दिस इज नोन एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. And motion is confined as relative motion. Stationary object, the object is at rest. जो object rest पे होते हैं, रुके होते हैं, move नहीं करते हैं, these are called as stationary object. For example, a car moves on a straight road and change their position with respect to a stationary tree which is aside a road. देखिए रोड के एक साइड में एक ट्रेड है, ट्री है, और ट्री के रिस्पेक्ट में कार क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. देन इट्स defined as motion also, and it is also called as relative motion. Now question is arises here, when we say the body or object is rest or stationary, when the body or object is does not change their position with respect to time, then it is defined as at rest. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, सपोज एक कार खड़ी है ट्री के नीचे, तो वो ट्री के नीचे ही खड़ी है, कहीं जा नहीं रही है, ठीक है, देन इट इज एट रेस्ट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन. So motion is broadly classified into four types: translational motion, rotational motion, periodic motion, and non-periodic motion. Again, the periodic motion is divided into revolutionary motion, oscillatory motion, and it is also called as simple harmonic motion. And translation motion is further divided into rectilinear and curvilinear motion. Then another type is according to direction: one-dimensional motion, two-dimensional motion, and three-dimensional motion. After that, according to the state of motion, uniform motion and non-uniform motion. Now we discuss one by one all the type of motion. First is translational motion. It is a type of motion in which all parts of an object moves the same distance in a given interval of time is called translation motion. समझते हैं इसे. अगर हमारे पास कोई कार है, अगर मैं बात करता हूँ उसके आगे वाले पार्ट के कंपैरिजन में, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट के कंपैरिजन में फ्रंट का और बैक के कंपैरिजन में बैक पार्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी उसने अपने सारे पार्ट को इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में कैरी किया. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कंसिडर्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन. बर्ड्स फ्लाई इन स्काई. अब बर्ड है, जब वो स्काई में फ्लाई कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी हाफ बॉडी को फ्लाई कर रहा है, हाफ बॉडी को बीच में छोड़ के जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो दिस मोशन इज कन्फाइंड एज ट्रांसलेशनल मोशन. Some more example of translational motion is a motion of the car on road. When the car moves on a road, then the all parts of the car move same distance in given interval of time. तो उसका देखिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि इसके फ्रंट के कंपैरिजन में फ्रंट का और बैक के कंपैरिजन में बैक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. देन इट इज कन्फाइंड एज ट्रांसलेशनल मोशन. नाउ ट्रांसलेशनल मोशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर, linear straight line motion. When an object under the translational motion moves along a straight line or linear path, then it is confined as rectilinear or straight line motion. जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में या सीधे रोड पर चलेगा, then it is confined as rectilinear motion. And move in a straight line on wall. जब चींटियाँ
स्ट्रेट लाइन में एक वॉल पे चल रही है, देन इट इज कन्फाइंड ऑल्सो एज ट्रांसलेशनल rectilinear motion. Second is curvilinear motion. Curve means moves in like this in form of curves. When object moves under the translational motion along the curved path, then it is called as curvilinear motion. For example, crawling motion of snake. Snake को आपने देखा होगा, स्नोक कैसे चलता है, क्राउलिंग करते हुए चलता है. तो उसका जो मोशन है वो क्या है, जिगजैग मोशन है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज curvilinear motion. अ स्टोन थ्रोन इन एयर एट द सेम एंगल. अब अपन एक बॉल को या स्टोन को थ्रो किया कुछ एंगल पे, बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो ये क्या हो गया, कर्व्ड पाथ हो गया. पाथ जिसका कर्व्ड होगा, कर्वीलिनियर मोशन. अब कार टेकिंग टर्न्स एंड ओवरटेक द व्हीकल ऑन रोड. कार जो टर्न टेक कर रही है और व्हीकल्स को ओवरटेक करते हुए चल रही है, इट इज ऑल्सो कन्फाइंड एज कर्वीलिनियर मोशन. Next type is rotational motion. When an object moves about an axis and different part of it move by different distance in a given interval of time is called rotational motion. That means यहाँ देखिए, टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो होगा रोटेशनल मोशन. सी इन एग्जाम्पल, रोटेशनल मोशन ऑफ द मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड जो हमारा झूला होता है, वर्टिकल मैरी गो राउंड की मैं बात कर रहा हूँ. तो मैरी गो राउंड में आपने देखा होगा, अगर आपको यहाँ पे बिठा दिया जाए तो आप देखोगे यहाँ वाला जो डिस्टेंस है कम है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा. Here the point A covers the least distance as compared to the point C and B in the same time, because distance covered in a circular path is equal to the circumference of circle. अनदर एग्जाम्पल इज रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ विंड मिल. विंड मिल के जो ब्लेड्स देखोगे तो उसका ये वाला जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कम होगा बिकॉज इसका सर्कल छोटा है, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, बिकॉज इसका सर्कल क्या है, बड़ा है. सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन. द मोशन विच रिपीट itself after a regular or fixed interval of time are called periodic motion. जो किसी एक फिक्स टाइम के बाद में अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, वहीं से स्टार्ट होते हैं. दीज आर कन्फाइंड एज पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जाम्पल, रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू 24 आवर्स. ठीक है, रिपीट करते हैं अपने मोशन को हर 24 आवर्स के अंदर. नीडल्स ऑफ द क्लॉक रिपीट इट्स मोशन आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. सेकेंड हैंड क्लॉक after 60 seconds, minute hand clock after 60 minutes, hour hand clock after 12 hours. Next is the types of rotational motion. First is revolutionary motion. When a body moves along a fixed point in a circular or elliptical path is called revolutionary motion. देखिए, चाहे वो इलिप्टिकल पाथ में चल रही हो चाहे सर्कुलर पाथ में, लेकिन अब फिक्स इंटरवल के बाद अपने टाइम को रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशनरी मोशन. रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन is example, and Earth's revolution period approximate 365 days. Next type is oscillatory motion, and it is also confined as simple harmonic motion and vibratory motion. The motion in which a body is suspended or hanged about a fixed point and repeat its motion or oscillations after a fixed interval. वो एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपने क्या करती है, मोशन को रिपीट करती है आफ्टर फिक्स इंटरवल. टू एंड फ्रो मोशन जैसे हो गया हमारा. A plucked the stretched rubber with band, it can do the oscillatory motion. अगर हम रबर बैंड को दोनों साइड से क्या करते हैं, फिक्स कर दें, उसको स्ट्रेच करके छोड़ें, तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा. ठीक है, इन दो एक्सिस में मीन पोजीशन पे बार बार आएगा और चलेगा एक्सट्रीम्स पे. फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, अपर दो पोजीशन एक्सट्रीम हो जाएंगी और मिडल वाली मीन हो जाएगी जहाँ से वो इनिशियल स्टार्ट होगा. मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो सिंपल पेंडुलम होता क्या, पहले वो समझ लीजिए. अ स्ट्रिंग, एक धागे से लटका हुआ एक बोब होता है, एक मेटेलिक बोब होता है. द फिक्स पॉइंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोब. अगर हम उसे एक साइड से करके छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, अपने मोशन को फिर से रिपीट करता है, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर जाएगा. दिस इज अ पीरियोडिक ऑल्सो. फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन. और मोशन ऑफ स्विंग, जब हम झूले लेते हैं स्विंग पे, तो स्विंग पे झूले लेने पे भी क्या होता है, सेम मोशन रिपीट होता है, टू एंड फ्रो मोशन. Next is non-periodic motion. The motion which does not repeat itself after a fixed interval of time are called non-periodic motion. जो अपने आप को रिपीट नहीं करते फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, जैसे वन डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं लेकिन वापस उस पोजिशन में नहीं आ रहे हैं. दिस इज नॉन पीरियोडिक मोशन. अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड डज नॉट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. अ गर्ल रनिंग ऑफ द स्ट्रेट रोड does not repeat its motion after a fixed interval of
टाइम। एक गर्ल है, रन कर रही है स्ट्रेट रोड पे, वो भी अपने मोशन को रिपीट नहीं कर रही है। फिफ्थ टाइप इज मोशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, वन डायमेंशनल मोशन, दैट मीन्स मूविंग अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, अनदर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में चलना। When a body moves along only a single direction or one dimension is called one dimensional motion. Motion of the car on straight road towards east. East में गाड़ी जा रही है तो इसकी डायरेक्शन एक ही है, that is one dimensional. Two dimensional motion. When a body moves along a two dimension or in a plane. Two dimension along means क्या है? हमारे पास दो डायमेंशंस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की y एक्सिस और x एक्सिस। अब गाड़ी चल रही है तो कभी कर्व में ऐसे चल रही है, कभी ऐसे चल रही है, कभी इधर, अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही है, टू डायमेंशन में चलना। बाउंसिंग बॉल, मोशन ऑफ द बास्केट बॉल, ये सारे क्या होंगे? हमारे टू डायमेंशनल मोशन होंगे। कर्विलिनियर मोशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। थर्ड इज थ्री डायमेंशनल मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ थ्री डायमेंशन इन अ स्पेस देन इट्स कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल मोशन। जब बॉडी स्पेस में चल रही है तीनों एक्सिस के लोग, जैसे हमारे रूम के अंदर एक हाउस फ्लाई है, वो मूव कर रही है या मॉस्किटो घूम रहा है, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, वो स्टोर्ड है सिलेंडर के अंदर, तो भी वो क्या करेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन शो करेंगे। सिक्स टाइप इज मोशन अकॉर्डिंग टू स्टेट। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। When a moving body travel the equal distance in equal interval of time is called uniform motion. जब कोई बॉडी है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट इज कन्फाइंड एज यूनिफॉर्म मोशन, यानी वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अ बाइक राइडर and ride his bike from a stationary point and he can travel each meter distance in every 10 seconds, then he will do uniform motion. See, अगर कोई बाइक राइडर, उसने अपनी बाइक को स्टार्ट किया ज़ीरो टाइम पे, टाइम की वैल्यू ज़ीरो है और ज़ीरो मीटर से स्टार्ट किया, फिर हर एक 10 सेकेंड्स में वो क्या कर रहा है? अपनी स्पीड को, डिस्टेंस को 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। सी, इन डेटा, जब वो शुरुआत में था ज़ीरो पे था, ठीक है, उसके बाद में 1 किलोमीटर जब उसने ट्रैवल किया तो कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड, फिर अगले 10 सेकेंड में आगे 1 किलोमीटर, फिर अगले 10 सेकेंड में आगे 1 किलोमीटर, सो ऑन इसके मूविंग। एंड ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वाई और एक्स एक्सिस में, एक्स वाई एक्सिस वी टेक एज डिस्टेंस एंड एक्स एक्सिस वी टेकन एज टाइम, then we obtain equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, obtain the straight line graph. The slope of the graph of uniform motion gives the uniform speed, and the graph of uniform motion is distance time graph. Next is non-uniform motion. When a moving body travels the equal distance in unequal interval of time is called as non-uniform motion. जब कोई बॉडी है अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए बस, अब आप बस में ट्रैवल करते हैं डेली, तो जब बस में ट्रैवल करते हैं तो बस की स्पीड लगातार एक जैसी नहीं रहती है, वो कभी स्टॉप हो रही है, कभी चल रही है, फिर रुक रही है, कभी स्पीड को चेंज कर रही है। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज अ ग्राफ एयर। जब उसने जीरो से अपनी डिस्टेंस से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर को करने में से 10 सेकंड लगे, उससे नेक्स्ट में करने में 30 सेकंड्स, यानी कि बीच में इंटरवल कितना है? 20 सेकंड्स का इंटरवल आ गया। फिर उसे फिर 30 सेकंड्स का इंटरवल आ गया, फिर उसके पास वो 10 सेकंड का इंटरवल आया। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ क्या होते हैं? कर्व्ड ग्राफ कहते हैं। पहले कौन से ग्राफ कहते हैं? कर्व्ड ग्राफ्स। द स्लोप ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन गिव्स द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. I hope are you understand the concept of this chapter. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification. Thank you and have a nice day.